Good morning, children. Today we'll continue our lesson Children at Work, written by Geeta Oath. So, children, you have read that. You know that value. He was a small boy of 11 years. His father, he was a drunkard, and he used to beat value and used to snatch every money that value and his sister earned. Value was fed up and decided to run away from his home. He walked all day in Kannauр. Kannauр is a place in Tamil Nadu. A rag picker, she is a small girl and her name was Jaya, and she has brown and dirty hair. And she met him and talked about him. She told Value that she could arrange food for him because Value, he was hunger for 3 days. Value had no option other than to follow Jaya, that girl. He was because he was hungry. Now let's continue our lesson. He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Value found that a vehicle kept coming and never stopped for anyone. He caught up with the girl, so Value, he went away with the girl. He followed the girl and he went away with Jaya, and they both left the station. And और वो कहाँ पहुंच गए? वो रोड पे पहुंच गए और वैल्यू ने वहां क्या देखा? ही सॉ दैट व्हीकल्स कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन. जो व्हीकल्स थे वो आ रहे थे और किसी के लिए भी व्हीकल्स इंतजार नहीं कर रहे थे, किसी के लिए भी रुकने का इंतजार नहीं कर रहे थे. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. And smoke and dust, धुआं और धूल उड़ रही थी और जो वैल्यू था उसका जो सिर था, he was feeling dizzy, उसका जो सिर था वो चकराने लगा. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. और उनको रोड क्रॉस करने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. Value kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. And Value, he felt hesitating, वो hesitate फील कर रहा था और जो गर्ल जया थी वो वैल्यू को घसीट कर रोड के दूसरे साइड पे ले गई. What do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be चटनी. और गर्ल ने क्या कहा कि तुम क्या कर रहे हो उस मिडल ऑफ द रोड में खड़े होकर? अगर तुम इसी प्रकार तुम रोड के बीच में खड़े रहोगे, यू विल बी चटनी मीन्स यू विल बी किल्ड. यहाँ पे चटनी का मीनिंग है किल, तो तुम मारे जाओगे, यू विल बी किल्ड. Value's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. And Value, उसका जो दिल था, it was still beating fast, वो अब भी तेज धड़क रहा था. उसने कहाँ देखा? पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन पे देखा और ट्रैफिक को देखा जो स्पीडिंग बाय, जो वहां से बहुत स्पीड से गुजर रहे थे. How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some huge signboards, and the girl and the Value, फिर वो रोड के किनारे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे होते हैं और फिर उन दोनों ने, वैल्यू और जो गर्ल रैग पिकर जो गर्ल थी, हर नेम वाज जया, उन्होंने साइन बोर्ड्स को देखा. एंड वैल्यू ही लुक्ड अप द पिक्चर्स, उसने पिक्चर्स को देखा. पिक्चर्स किसकी थी? उसमें बनियंस की थी, कार की, टायर्स, पेन्स, a woman holding a box, and the writing was all in English. So he did not know what it meant. और जितने भी जो साइन बोर्ड्स थे उसमें जो राइटिंग, जो कुछ भी लिखा हुआ था, it was all written in English और वैल्यू उसको नहीं समझ पाया. The girl turned into a white bridge and walked up. गर्ल जो थी उसने एक चौड़े से ब्रिज पे टर्न लिया और वो चल पड़ा. Value he stopped and peeped over the railing. और उसने वो रुका और रेलिंग से वो झांकने लगा. Under him the road ran into the city. In the distance he could see huge buildings and towers and more roads. और in the distance, दूरी से वो क्या देख रहा था? वहाँ पे huge buildings, ऊंची ऊंची buildings थे,
टावर्स थे और भी कई सारी रोड थे। See that building with a wall around it. If you are not careful, you'll soon be counting bars there. And the girl वो कहने लगी, she told value कि तुम अपने की क्या कर रहे हो, यू आर लुकिंग एट द ह्यूज बिल्डिंग, ह्यूज टावर्स, और अगर क्या करोगे, नॉट केयरफुल, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम क्या करोगे, यू मे फॉल डाउन, तुम यहाँ से रेलिंग से तुम गिर भी सकते हो। तो गर्ल शी गेव अ ब्रॉड स्माइल एंड पॉइंटेड एट एक बड़ी सी बिल्डिंग किया और उसने इशारा किया। वैल्यू स्क्विंट एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जे, और वैल्यू ने उस साइन बोर्ड पे पढ़ा, उसमें तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जे। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, अब उसने वैल्यू ही टोल्ड द गर्ल कि मैंने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम मुझे यहाँ क्यों ले जा रही हो। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। अब गर्ल शी टोल्ड वैल्यू कि डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। What does she mean? Value wonder. उस गर्ल का कहने का क्या मतलब था? Value he was wondered, वो हैरान हुआ। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. और इस दौरान जो गर्ल थी, she was still walking, और वो अब भी रोड पे चली जा रही थी और उसकी शोल्डर पर एक सैक, एक बोरा सा लटका हुआ था। What was in it? And value he asked the girl कि सैक में क्या है? He had seen her putting plastic cups into it at the station. वैल्यू ने देखा था कि जो गर्ल थी जया, वो उस सैक पे प्लास्टिक के कप्स को उस पे डाल रही थी। What are you carrying in that bag? Things, bottle, paper, and वैल्यू ने इससे पूछा कि तुम सैक पे क्या रख रही हो? तो वो गर्ल ने रिप्लाई किया, बॉटल रख रही हूँ मैं, पेपर। वैल्यू wondered what she was doing with them, और वैल्यू वो सरप्राइज हो गया कि गर्ल इन सब चीजों से क्या करेगी। But he felt shy to ask any more question. It was still morning, but the sun blazed down on the tar, and value's bare feet burned. और ये अब भी मॉर्निंग का टाइम था, लेकिन जो सन था, it was shining, और जो सन था वो बहुत तेज चमक रहा था, और वैल्यू he was barefooted, he was without, उस नंगे पैर था, उसके जो फीट थे वो गर्मी के कारण वो तपने लगे, जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, और अपने गांव में क्या करता था, मिट्टी के रोड में वो वॉक करता था और उतनी तपती नहीं थी, इतनी गर्म नहीं होती थी। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट एंड ही वॉज सोक्ड एक्सट्रीमली वेट, और वो पसीने से बिल्कुल गीला हो चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, एंड वैल्यू ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की शेड में चलने के लिए और इसके साथ साथ ही जया का इसके साथ रहने के लिए। शी वॉक रियली फास्ट एंड दैट गर्ल जया, शी वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज चल रही थी। एंड हर अवे वॉज द फूड, हाउ फार अवे वॉज द फूड, और वैल्यू ने पूछा कि अब फूड और कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, और 1 घंटे तक चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके। राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड, और उस बिल्डिंग का नाम क्या था, श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम था। और वैल्यू ने धीरे से पढ़ा, और वहां पे क्या लिखा हुआ था कि, और एक लेटर भी लगा हुआ था बोर्ड पे और लिखा हुआ था ब्रूम जेवी विनज्ञान ब्राइड रानी। ब्रूम का नाम जेवी विनज्ञान था और ब्राइड का नाम रानी था। वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, और वैल्यू ही लुक्ड एट द बिग कार जो बाहर पार्किंग में लगी हुई थी। वन ऑफ द कार्स हैड a flower garland and roses stabbed into it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck in her hair. और गर्ल जिया ने क्या किया, she pulled out a flower from the cars पे जो फ्लावर चिपके हुए थे उसमें से एक फ्लावर को निकाला और अपने हेयर पे लगा दिया। Come on, she said, और वैल्यू से बोली कि आओ। Are we going to eat here? asked वैल्यू। अब वैल्यू ने कहा क्या हम यहाँ पे are we going to eat here?
लुकिंग एट अ ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, और उसने हॉल के अंदर जो लोग थे उनकी ओर देखा और लोगों को। होप सेट अ गर्ल, गर्ल ने कहा ऐसी उम्मीद है, और एंड गर्ल ने क्या किया, वो शी टुक वैल्यू, हॉल के अंदर वो हॉल वैल्यू को ले गई, और वहां पे उन्होंने क्या देखा, दे सॉ अ बिग गार्बेज, और बहुत ढेर सारा गार्बेज था, और ओवरफ्लोइंग रबिश, और कूड़ा करकट से वो भरा हुआ था। एंड टू गोट्स दे वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और वो उस गार्बेज पे जो दो गोट्स थी वो वहां पे खड़ी थी, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और बनाना लीफ को के लिए दोनों फाइट कर रही थी। फिर वैल्यू ने वो शॉक हुआ। अब वैल्यू ने पूछा क्या हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ईट लेफ्ट ओवर्स, की जो यहाँ पे बचा हुआ है हम उसे खाने वाले हैं। तो उसने क्या कहा, वैल्यू ने, ची व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तुम क्या सोचती हो कि मैं क्या कोई डॉग हूँ। आई ओनली टेक अनटच फूड, कि मैं केवल अनटच फूड को खाता हूँ, लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ फूड को मैं नहीं खाता। सम मोर शी थ्रू हिम अ बड़ा, और फिर उस गर्ल ने वैल्यू की ओर एक बड़ा फेंका। वैल्यू लुक एट विद डिस्टेंस, और वैल्यू ने उस बड़ा को डिस्टेंस के साथ देखा। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू आई फाइंड यू समथिंग टू ईट। अब वैल्यू द गर्ल शी टोल्ड, वैल्यू से कहा उस गर्ल ने कि जो कुछ तुम्हें मिला तुमसे खा लो, मैंने तुमसे कहा था ना कि आई विल फाइंड समथिंग टू ईट, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ऐसा मत समझो कि मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए मनी है। यू वुड बेटर ईट व्हेन यू गेट until you have your own money. Value hesitated and but his stomach, but Value was feeling hungry. He gulped down the banana and bara, उसने उस बनाना और बरा को वैल्यू ने खा लिया। एंड his stomach felt better, और उसका जो स्टमक था वो अब कुछ ठीक फील करने लगा। He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. और जो वैल्यू था ये 10 टाइम ज्यादा खा सकता था, लेकिन गर्ल को केवल एक बनाना और मिला, which she ate herself, जो उसने खुद खा लिया। It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. अब गर्ल ने कहा वैल्यू से कि अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो उन्होंने केवल अपना टिफिन ही खाया है, अगर तुम इंतजार कर सकते हो और तुम्हें अब भी भूख लगी है तो यू हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें इंतजार करना होगा। यू कैन वेट इफ यू वॉन्ट, आई हैव टू वर्क, और गर्ल ने कहा कि इफ यू वॉन्ट टू वेट यू कैन वेट, आई हैव टू वर्क, मुझे काम में जाना है। आई एम गोइंग सो आई एम गोइंग। She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. And जया ने क्या किया, couple of bottles को उस ढेर से उठाया और अपने सैक के अंदर उसने डाल दिया। And then the girl she walked off. Value he realized that if the girl left him, और Value को realize हुआ कि अगर गर्ल उसको छोड़कर चली जाएगी, he had no idea where he was and what to do, तो उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि उसे कहाँ जाना है और उसे क्या करना है। It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after again. और उसने क्या कहा वैल्यू ने कि it's better, कि मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं गर्ल के साथ ही रहूं। क्यों? क्योंकि उसे अपने आसपास के सारे एरिया को जानती है। And Value he ran after the girl. A he called. He did not even know the girl's name. A उसने कहा, and he did not Value, he did not know girls का नाम वो नहीं जानता था। He asked, what's your name, कि तुम्हारा नाम क्या है? और गर्ल ने कहा कि मेरा नाम क्या है, जया। अब फिर उसने कहा कि I'm not following you. What then you got your food? You got who got your food? अब गर्ल ने क्या कहा कि तुम्हारे लिए कौन फूड लाया? Can I come with you? Where are you going? अब वैल्यू ने पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? Where are you going? तुम कहाँ जा रही हो? And the girl she replied, come if you want. If you want to come with me, you can come. This bag is full. मेरा जो सैक है ये बैग एक फुल हो चुका है। I have to go home to get another one. और मुझे घर जाना होगा
दूसरा सेट दूसरा बैग लाने के लिए. So children, now come to the word meaning. Making his head spin, making him feel dizzy. Grin means to give a broad smile. चटनी, here चटनी means, बेटे इस लेसन में चटनी का मीनिंग है रन ओवर और किल्ड. Blasted means to make a hole. Soaked means extremely wet. Now children, your homework is read the lesson and do the question answer. Thank you.